Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman, VTC teacher. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's lesson, we are going to learn about problems on measurement. यानी आज के सेशन में बच्चों हम पाँचवीं जमात में रियाजी मजमून में यहाँ पर बात करने वाले हैं पैमाइश पर मबनी जो मिसालें हमारे उसके बारे में। सबक नंबर 11 है जो हमारा, उसके बारे में आज के सेशन में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और साथ ही हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 46 इसे भी यहाँ पर हल करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट बाय दिस प्रेजेंटेशन। सो इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व we use the units like meters, gram, liters to measure length, mass, capacity respectively। जो हम हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी कारोबार में मीटर, ग्राम, लीटर जैसी इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा भी हम देखते हैं रुपये, पैसे, घंटे, मिनट जैसी इकाइयाँ भी हम जो है तो रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। We use rupees and पैसे while shopping. We use minutes and hours to measure time. Operations like addition, subtraction, multiplication and division with these units of measurements are carried out here. So in this session, students, we specially observe all these operations। बच्चों हम यहाँ पर जो है तो समझेंगे कि पैमाइश की जो इकाइयाँ हैं, इन इकाइयों पर जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम के 4 बुनियादी अमल किस तरह से किए जाते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन, फिर उसके बाद में मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स जो है तो अलग अलग एग्जाम्पल से, या जो प्रैक्टिस सेट 46 है उसमें इस तरह के अलग अलग सवालात हैं, उसके ज़रिए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट बाय दिस एग्जाम्पल। सो हियर्स एग्जाम्पल ऑन योर स्क्रीन। Do the addition of 13 kilometers 590 meters plus 28 kilometers and 725 meters. So we are supposed to do the two sides like this. While doing the addition, we are supposed to keep the kilometer on left hand side and the meter on the other side. Okay, so here is the kilometer and 13 kilometers, and then 590 meters is here, and 28 kilometers and 725 meters. So we are supposed to keep like this here, and you know the addition, or we are supposed to do first the addition of 590 and 725. So we'll do here 590 plus 725, so it will be 1515 meters. Okay, so you will see here that 315 is a meter, so we are supposed to keep this figure here 315 in the meters column,
and this one will be here in this column. Okay, in kilometers. You know that 1000 meter will be 1 kilometers, so 1 will be here in this column. Okay, so similarly we put down here 315 in meter column, and 1 will be in the kilometers column. Okay, so you will see here that after getting 1, you will see here that 1 plus 3 will be 4, 4 plus 8 will be 12, so 1 will be 12 and 2 is here and 1 will be carry over here. Okay, so you will see here that after doing the addition of 1 plus 1, 2 plus 2 will be 4, so it will be 42 here. So you will see here that the answer will be 42 kilometers and 315 meters. So students, once again we'll see here that how we adjusted this figure to here. So you see here that 1315 meters we are supposed to convert it into 1 kilometers and 315 meters. So we put down here that 315 is here and 1 kilometer will be here like this. Okay, so we can do the addition easily if once we understand this kind of technique. Okay, so you see the answer will be the addition of 13 kilometers and 500 meters plus 28 kilometers and 725 meter will be 42 meters and 315 meters. Okay, like this. Now we will see here the another example of subtraction. So here's the subtraction. Subtract the 37 liter and 500 milliliter from 15 liters and 715 milliliters. And you know that while writing the liter and milliliters, we are supposed to write here L and ml for milliliters. Okay, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों की जो इकाई दी हुई होती है मीटर की, उसे हम एम से जाहिर करते हैं. ठीक है, आपको मालूम है. इसी तरह से लीटर को जो है तो एल से जाहिर करते हैं ना. एम एल यानी कि मिलीलीटर होता है. ठीक है, इस तरह से. तो यहाँ पर हमें सब्सट्रैक्शन करना है 37 लीटर और 500 मिलीलीटर में से 15 लीटर और 750 मिलीलीटर का. ओके, तो यहाँ पर भी हमें देखना है बच्चों की जो मिलीलीटर की इकाई है ये छोटी होती है, राइट, और लीटर ये इकाई जो है तो बड़ी है ना. ये इकाई बड़ी है. आपको ये भी मालूम है कि 1000 ml से जो है तो हमारे पास क्या बनता है, 1 लीटर बनता है. ओके, ये बात भी आपको पता है ना. तो अब चलिए यहाँ पर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं 37. 2 कॉलम करेंगे हम, 1 लीटर का और 1 मिलीलीटर का. क्यों हमें 2 कॉलम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इकाई जो है तो लीटर की बड़ी है और मिलीलीटर की इकाई जो है तो छोटी है. ठीक है, अब फिगर हमें यहाँ पर बड़ा ज़रूर से नज़र आ रहा है ना. फिगर हम देख रहे हैं यहाँ पर 500 नज़र आ रहा है ना, लेकिन वो ml है. अब जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, आपको ये पता है कि 500 में से जो है तो हम
750 को माइनस नहीं कर सकते, है ना। कर सकते हैं कैसे सब्सट्रैक्ट, यहाँ पर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये 500 ये क्या है, एक छोटी इकाई है ना, और जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 750 ये एक बड़ा अदद है ना। तो इसलिए बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक होता है, लेकिन छोटे अदद में से बड़ा अदद तफरीक नहीं होता है ना। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा इसके लिए, इसके लिए नॉर्मली हम जब तफरीक करते हैं तो बाजू से एक ले लेते हैं ना, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर हम अगर एक लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 1500 ml हो जाएगा। ओके, अगर हम यहाँ पर एक ले लेते हैं ओके। तो you know that 750 ml cannot be subtracted from 500 ml. So यहाँ पर हम देखते हैं कि 500 मिलीलीटर में से 750 मिलीलीटर तफरीक नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर 1 लीटर के 1000 मिलीलीटर लेते हैं, ठीक है, और 1000 और 500 हुए, इस तरह से हम यहाँ पर जो है तो 1500 मिलीलीटर इस तरह से इसे लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो कन्वर्ट 1 लीटर टू 1000 ml and you will see that 1000 plus 500 ml will be 1000 ml here. So what suppose we ask, what suppose we have to write here, that will be 1500 ml is here in the column. Okay, and now we can do the subtraction of 750 from 1500. So you will see here that after doing the subtraction from 1500, we'll get here answer 750. So here you will see that 1 liter is minus from 37. So here we are supposed to write 36 liter. Okay, that will be 36 liter now. Okay, because 1 liter we have taken this side. Okay, and we converted it into ml, and after that we done here the subtraction. And now we are supposed to subtract 15 from 36. So you know that if we are doing subtraction from 6, you will get 1 after subtracting 5 from 6, and 3 subtracted 1, you will get here 2. So you will see here that the answer will be 21 liters and 715 ml will be the answer here. Okay, like this. So you can do and this like this method so many examples easily. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप जो है तो बहुत सारे सवालात इस तरह से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम अब प्रैक्टिस सेट जो हमारा है 46, इसका क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं यहाँ पर, और आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर जो इकाई दी हुई है, जैसे अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं रुपीज़ जो दिया हुआ है 9 रुपीज़ और 50 पैसे में एडिशन करना है हमें 14 रुपीज़ और 60 पैसे, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ याद रखने की है वो सबसे पहले यह है कि जो इकाई है, जैसे अब यहाँ पर उसका मुशाहिदा करना है कि एक तरफ रुपए की इकाई है और दूसरी तरफ पैसे हैं, तो इसे 2 हिस्सों में इस तरह से हम रखेंगे, पैसे अलग रखेंगे और रुपए अलग रखेंगे। रुपए की इकाई बड़ी है, पैसे की इकाई छोटी है, इसलिए, ठीक है। और अब इत्मीनान से हम इसको जो है तो एडिशन कर सकते हैं ना। ओके, सो 9 पैसे प्लस 9 रुपीज़ प्लस 50 पैसे, addition of 14 rupees and 60 paise. So you will see here that you know that 100 paise will convert to 1 rupee. So after doing the addition of 50 paise and 60 paise, you will get here 110 paise. Okay, so you will see here that the 110
paise is equal to 1 rupee plus 10 paise. Okay, like this. So you will see here that 1 rupee will be here. Okay, and you will see here, you will get here 10 paise in this column. Okay, so like this we have taken here the 10 paise after doing the addition, and 1 rupee will be this side. So you will see here that 1 plus 9, 10, 10 plus 4 will be 14. Okay, and 14, 1 will be carry over, and finally you will get the answer here. 1 plus 1, 2, 24 rupees and 10 paise. So the addition of 9 rupees and 50 paise plus 14 rupees and 60 paise will be 24 rupees and 10 paise. Okay, like this. So we can do the addition like this. Okay, so this is the question number 1. Now we'll move for the next question. Okay, so here you will see, यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले हमने जो इकाई देखी थी उसमें रुपए और पैसे थे। अब इसमें जो एडिशन हमें करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर दिया है ना। यहाँ पर जो है तो क्या दिया है, एडिशन जो करना है हमें यहाँ पर, तो मम कहते हैं जिसे हम, ठीक है, सम और मम, है ना। तो यहाँ पर हम cm 6 cm और 5 mm प्लस 7 cm और 9 mm, ओके, यहाँ पर एडिशन है इसका। ओके, तो यहाँ पर इकाई जो है तो cm और mm है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब 6 को हम यहाँ पर cm और mm का जो है तो अलग हमने कॉलम बनाया, उसमें से रख दिया इस तरह से, ठीक है। अब इसका एडिशन हमें यहाँ पर करना है। ओके, सो एडिशन में आप देखेंगे यहाँ पर कि 10 mm इज इक्वल टू 1 cm होता है। ओके, तो यहाँ पर हम एडिशन कर लेते हैं। 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 mm। सो यू विल सी हेयर कि 10 mm का 1 cm बनता है ना, स्केल पर देखा हुआ है आपने, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसे 1 cm को, और mm जो है तो इसी कॉलम में, mm के कॉलम में हम लिखेंगे, ठीक है। तो 9 प्लस 5 विल बी 14 and 1 cm will be in cm column. So 1 plus 6, 7, 7 plus 7, 14. Okay, so you will see here that answer will be 14 cm and 14 cm and 4 mm will be the answer here. Okay, like this. तो इस तरह से हम बहुत सारे जवाबात अपने तौर पर हल कर सकते हैं, राइट, इस तरह से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 22 मीटर और 50 सेंटीमीटर, उसमें एडिशन जो है वो है 25 मीटर्स और 75 सेंटीमीटर का। तो सिमिलरली हम यहाँ पर इसे रख देते हैं 22 और यहाँ पर 50 cm। उसके बाद में इसका एडिशन करना है 25 मीटर्स एंड 75 सेंटीमीटर्स। सो यू नो कि यहाँ पर जो है तो 50 सेंटीमीटर है और 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि 100 सेंटीमीटर का जो है तो 1 मीटर होता है ना। तो यहाँ पर हम एडिशन कर लेते हैं पहले
सबसे पहले 50 और 75 का, तो ये हो जाता है 125 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर इसका जो एडिशन हमने किया तो 125 सेंटीमीटर मिला हमें। तो 100 सेंटीमीटर में से आप देखेंगे कि 1 मीटर यहाँ पर हमारा बन गया है, ठीक है। और ये 25 सेंटीमीटर है, तो वो हम यहाँ पर 25 सेंटीमीटर को जो है तो सीएम के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 125 cm is equal to 1 meter and 25 सेंटीमीटर। सो 25 मीटर सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिया और 1 मीटर हमने यहाँ पर मीटर के कॉलम में लिखा है। अब एडिशन कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि 1 + 2 3, 3 + 5 8, ओके। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 + 2 विल बी 4 हेयर। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 48 meters and 25 centimeter will be the answer here. Okay, 25 48 meters and 25 centimeter will be the answer here. Okay, like this. अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 15 kilometers and 740 meters addition with 13 meters and 950 meters। ओके, तो यहाँ पर हम सिमिलरली इसकी को जो है तो दो कॉलम किए हैं, किलोमीटर का अलग कॉलम है और मीटर का अलग कॉलम है, उसमें से हम यहाँ पर रख देते हैं, मीटर को मीटर में और किलोमीटर को किलोमीटर में, इस तरह से। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हमको मालूम है कि 1000 मीटर का जो है तो 1 किलोमीटर होता है ना। तो सो द एडिशन ऑफ 740 and 600 and 950 will be here like this, 740 plus 950 meters is equal to 1690 meters। सो यहाँ पर हमने 690 मीटर्स यहाँ ले लिया और एक जो है तो 1 किलोमीटर 1000 में से हमने यहाँ पर 1 किलोमीटर यहाँ लिया है, ठीक है। सो अब एडिशन हम यहाँ पर कर लेते हैं इसका। सो यू विल सी हेयर 1 + 5 6, 6 + 3 9 और 1 + 1 विल बी 2 हेयर, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 29 किलोमीटर्स एंड 690 मीटर्स हमें इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो 1690, ये जो यहाँ पर समझने वाली चीज़ है बच्चों वो यही है कि 1 किलोमीटर को हमने यहाँ पर इस इकाई में लिखा है, इस तरफ किलोमीटर में लिखा है, और 690 जो है उसे हमने यहाँ पर मीटर में लिखा है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो गया, 29 किलोमीटर्स, 29 किलोमीटर एंड 690 मीटर, इस तरह से, ठीक है। तो हम आसानी से इस तरह से जो है तो जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा वो है 25 liters, 25 जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो है यहाँ पर दिया हुआ 25 kg plus 650 gram with addition 29 kg and 770 grams। okay, g for gram and kg for kilogram। so here we put it into two part. First part is for kg and second part is for gram। so 25 kg plus and 650 gram plus 29
kg and 770 grams. So you know very well that 1000 gram is equal to 1 kg होता है ना. So here 650 and 770 gram will be 1420 gram. Okay. So ये जो अब ग्राम का एडिशन है हमारा, इसे हम यहाँ पर कर लेते हैं. तो इसमें आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि ये जो एडिशन है इसमें यहाँ पर हम जो ग्राम है 1420, तो इसमें यहाँ पर हम ग्राम ले लेते हैं 4420 ग्राम. ठीक है. और जो 1000 है यानी कि 1000 मीन्स 1 किलोग्राम, तो इसे हमने यहाँ पर लिया. तो आप देखेंगे 1 + 5 6, 6 + 9 will be 15. So 1 will be carry over here, and you will see here that 1 + 2 3, 3 + 2 5. So you will see here it will be 55 kg and 420 gram here. So like this students, you will see here this part is so important in this question. ठीक है. यहाँ पर हमने देखा है कि 1400 ग्राम इसका एडिशन हुआ है, और इस एडिशन में हमने 1 किलोग्राम को यहाँ पर कैरी ओवर किया है. ठीक है. और 420 ग्राम को यहाँ पर ग्राम की इकाई में इस तरह से हमने लिखा है. ठीक है. तो आपने देखा यहाँ पर कि जो आंसर होगा हमारा वो होगा 55 kg and 420 ग्राम लाइक दिस. ठीक है. अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एडिशन का. वो है 19 लीटर्स एंड 840 मिलीलीटर, देन 25 लीटर एंड 25 liters and 250 milliliters. ओके. तो मिलीलीटर को ml से जाहिर करते हैं, लीटर को जो है तो L से जाहिर करते हैं. ओके. सो यहाँ पर हमने लीटर और मिलीलीटर के लिए 2 कॉलम बनाए हैं. ठीक है. इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखेंगे 19 लीटर एंड 840 मिलीलीटर का एडिशन है 25 लीटर एंड 250 मिलीलीटर से. ओके. सो यहाँ पर आप देखेंगे कि 840 + 250 ml का एडिशन हम करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा हमें 1090 ml. ओके. तो 1000 का यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 लीटर बन जाएगा. ओके. इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि, और ये जो 90 है ये ml है. ठीक है. तो ये इसे हमने ml के कॉलम में इस तरह से लिख दिया. ठीक है. तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि 1000 ml को हमने कन्वर्ट किया यहाँ पर, तो 1 लीटर यहाँ पर बन गया. ठीक है. उसे हमने यहाँ पर ले लिया, और ये 90 ml जो है उसको यहाँ पर ले लिया, 90 ml को. ठीक है. इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसका एडिशन जब हम यहाँ पर करेंगे तो 1 + 9 10, 10 + 5 15. So 1 will be carry over. So 1 + 1 4, 1 + 1 2, 2 + 2 4. So 45 liters and 90 milliliters like this. So इस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर 45 liters and 90 milliliter will be the answer here like this. ठीक है. इसके बाद हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन देखते हैं बच्चों. सब्सट्रैक्शन करना है यहाँ पर. ठीक है. तफरीक करना है. सो तफरीक करने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 19 रुपीज़ एंड 50 पैसे में से माइनस करना है हमें यहाँ पर 12 रुपीज़ एंड 60 पैसे को. ठीक है. ये यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना है. तो हमने रुपीज़ का अलग कॉलम किया है और
पैसे का अलग, ठीक है। 19 रुपीज़ एंड 50 पैसे सब्सट्रैक्शन करना है यहाँ पर 12 रुपीज़ एंड 60 पैसे, ठीक है। तो 60 पैसे में से 50 पैसे में से 60 पैसे सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे इसके लिए हम यहाँ पर यहाँ पर हम जो है तो इसका एडिशन कर लेते हैं पहले 100 प्लस 50, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 150, ठीक है। कैसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर जो है तो 19 को में से 1 रुपया लिया, यानी कि 100 पैसे हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो 50 है इसका एडिशन इसके साथ में हमें करना रहेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 18 हो गया, यहाँ से 1 रुपया हमने लिया तो यहाँ पर 18 रुपीज़ बचेगा, ठीक है। तो 100 पैसे इसके बन गए यहाँ पर, ठीक है। 100 पैसे प्लस ये 50 पैसे, तो ये कितना हो गया, 150 पैसे हो गए यहाँ पर, ठीक है। अब 150 पैसे में से हम इजीली अब यहाँ पर जो है तो जब 60 माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमें कितना मिलता है, 90 मिलता है, ठीक है। ये मालूम, ये बात समझ में आ रही है आपके कि किस तरह से यहाँ पर हमने ये 150 पैसे लाए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने 1 रुपया लिया है, 1 रुपया जब हमने लिया और उसको कन्वर्ट किया है पैसे में तो 100 पैसे यहाँ पर बन गया है, ठीक है। 100 पैसे प्लस 50 पैसे तो हो गया यहाँ पर 150 पैसे। अब 150 पैसे हम लाएंगे तो अब इजीली हम 60 को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें से। तो 60 को 150 में से सब्सट्रैक्ट किया हमने तो हमें यहाँ पर 90 मिला है, ठीक है। अब 18 रुपीज़ है यहाँ पर, 18 रुपीज़ में से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 12 रुपीज़ को। सो यू विल सी हियर that answer will be 6 rupees, okay। So you will see here that 6 rupees and 90 paise will be the answer here, ठीक है। इस तरह से अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है 24 cm and 2 mm minus 3 cm and at 8 mm here। so यहाँ पर हमने cm और mm को जो है तो 2 कॉलम इस तरह से किए हैं, ठीक है। cm जो है तो लेफ्ट कॉलम में है और mm जो है तो राइट कॉलम में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 24 cm and 2 mm then 3 cm and 8 mm। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 जो है तो ये छोटा है ना 8 से, तो ये यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, अब आपको ये बात मालूम है कि 10 mm से 1 cm बनता है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 24 में से 1 अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, 1 cm, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि वो क्या बन जाएगा, 10 mm बन जाएगा, ओके। सो 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 12 लिया इस तरह से, ठीक है। ये 12 mm यहाँ पर हो गया इस तरह से, ठीक है। अब 12 mm को हम इजीली सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना, 8 को यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने 1 cm लिया उसको कन्वर्ट किया mm में, तो 10 mm यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर 23 cm रिमेनिंग रहेगा, है ना, यहाँ पर जो बाकी रहा है वो कितना रहा है, 23 cm। अब यहाँ पर हमें 23 cm एंड 12 mm में से सब्सट्रैक्ट करना है 3 cm एंड 3 cm एंड 8 mm को। तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम, 12 minus 8 will be 4 and 23 minus 3 will be 20, okay। So like this you can see here
The answer 20 cm and 4 mm. Okay, like this. Now the next question. Question number 3 is on your screen. 20 m and 20 m is 20 meters, and 30 cm means 30 centimeter. Subtraction 17 meters and 60 cm, 60 centimeters. So here we call them cm and mm, like this, and we are supposed to put the cm in mm. तो बच्चों अब यहाँ पर हम इसका रख देते हैं इसे कीमतें जो है cm में और mm में इसकी। सो यू विल सी कि यहाँ पर अभी सेम जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे इसमें भी सॉल्व करना है। mm है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर cm है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 10 mm का जो है तो 1 cm बनता है, ठीक है। तो 1 cm यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 19 cm रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 cm इसमें ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पर। सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये मीटर है, ओके, यहाँ पर मीटर है ये, ठीक है, 20 मीटर्स है। तो यहाँ पर एम लेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर हम एम लेते हैं, ठीक है। और ये सी एम है, ठीक है, तो सी एम करेक्ट था यहाँ पर, ठीक है। तो सी एम को सी एम रखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है, ये सी एम बराबर है, हाँ, यहाँ पर जो है तो मीटर है, ठीक है। 20 मीटर्स एंड 20 मीटर्स है और 30 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। यहाँ पर 70 मीटर्स है और 60 सेंटीमीटर्स है, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारा मिस्टेक है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम मीटर ले लेते हैं और यहाँ पर सेंटीमीटर्स ले लेते हैं, ठीक है, सी एम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सी एम के लिए यहाँ पर हम सी एम लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब आपको मालूम है यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर 1 मीटर हटाते हैं तो 1 मीटर से क्या बनता है, 100 सेंटीमीटर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर 130 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है। अगर हम लेते हैं 1 मीटर को, यहाँ पर 1 मीटर हमने लिया तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 100 सेंटीमीटर प्लस ये लिया हमने यहाँ पर 30, तो यहाँ पर हो गया 130 सेंटीमीटर, ठीक है। सो द एडिशन, और सो अब यहाँ पर हम आसानी से इसका सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं ना। अभी 60 जो है तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 130 में से, है ना। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं ये, यहाँ पर हमने 1 मीटर यहाँ से ले लिया, उसका 100 सेंटीमीटर में से कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर अभी 19 मीटर्स बाकी रहेगा, है ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 130 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 130 सेंटीमीटर में से सब्सट्रैक्ट करेंगे अब यहाँ पर हम 60 को, तो यहाँ पर अभी कितना बाकी रहेगा, यहाँ पर रहेगा 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर 19 में से हम यहाँ पर 17 माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना रहेगा, यहाँ पर रहेगा 2,
ओके, 9 minus 7 will be 2 here, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे 1 minus 1 will be 0 here, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे 2 meters and 70 centimeter will be the answer here like this, इस तरह से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पर ले रहे हैं। इसमें क्या दिया है, 40 किलोमीटर्स एंड 255 मीटर्स एंड 17 किलोमीटर्स एंड 960 मीटर्स है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर सिमिलरली कॉलम करेंगे जैसे हमने पहले किया किलोमीटर और मीटर में, ठीक है। और इसमें ये इकाइयों को रख देते हैं यहाँ पर किलोमीटर और ये मीटर, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरह से 17 किलोमीटर्स एंड 960 मीटर्स, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको फिर वही प्रॉब्लम नज़र आएगा जो आपको ध्यान देना है कि 255 में से अगर हम देखेंगे तो 960 माइनस नहीं होता है ना। तो हम फिर वापस से वही काम करेंगे, यहाँ से हम एक ले लेते हैं तो यहाँ पर 39 बाकी रहेगा, यानी 1 किलोमीटर अगर हम ले लेते हैं तो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे कि 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 1000 प्लस 255, इसका एडिशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1255 मीटर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि इसका एडिशन करने के बाद में हमें यहाँ पर 1255 मीटर मिला है। अब 1255 को हम यहाँ पर रख देते हैं इस तरह से। तो आपने देखा कि 1000 हम यहाँ पर हमने 1 किलोमीटर एक किलोमीटर हमने यहाँ लिया, उसे 1000 मीटर में कन्वर्ट किया है ना। तो यहाँ पर अभी हमें कितना मिला है, अभी मिला है हमें 1255 मीटर, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर देखा कि ये यहाँ से एक लेने पर यहाँ पर कितना बाकी रह गया, यहाँ पर रह गया 39 किलोमीटर्स, ओके। अब यहाँ पर हम 1255 में से माइनस करते हैं 960, तो यहाँ पर आप देखेंगे 295 हमें मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर सब्सट्रैक्शन करते हैं 39 में से 17 तो हमें मिलेगा यहाँ पर 22, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे 22 किलोमीटर्स और 295 मीटर्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पर समझने की वो यही है, ठीक है, कि किस तरह से हमें यहाँ पर मीटर है, किलोमीटर है, ये सारी इकाइयाँ जो है उसको किस तरह से हमें समझते हुए उसे कन्वर्ट करना है और फिर उसे इस कॉलम में लाना है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। सब्सट्रैक्शन तो आपको आता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, 35 किलोग्राम और 150 ग्राम में से माइनस करना है 26 किलोग्राम और 470 ग्राम को, ठीक है। इसको सब्सट्रैक्ट करना है यहाँ पर। तो 35 किलोग्राम एंड 150 ग्राम, इसे यहाँ पर माइनस करना है हमें 26 किलोग्राम और 470 ग्राम में से, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसमें। अब ये चीज़ वापस हमें यहाँ पर समझना है, ध्यान देना है। 150 जो है तो ये यहाँ पर थोड़ा सा हमें, ये किलोग्राम की इकाई हो गई है, ठीक है, और ये ग्राम की इकाई होगी यानी जी, ठीक है, किलोग्राम एंड ग्राम। तो 1000 यहाँ पर हमने लिया, इसे यहाँ पर हमने कन्वर्ट करना है ग्राम में, ठीक है। तो 1 किलो अगर लेते हैं तो यहाँ पर 1000 ग्राम हो गया प्लस 150, ठीक है, यहाँ पर हो गया 1150 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 35 में से यहाँ पर अभी 34 किलोग्राम रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1150 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 470 अब माइनस कर सकते हैं 1150 में से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 680,
34 में से 26 माइनस करेंगे तो यहाँ रहेगा 8 किलोग्राम। ठीक है, इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर 8 kg एंड 680 ग्राम। ठीक है, ये आंसर हुआ हमारा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन, हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। इसमें दिया हुआ है यहाँ पर कितना है, 46 liters and 200 ml, then minus it from minus it 38 liter and 750 ml दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लीटर की इकाई एल से बनाएंगे, यहाँ पर एल लिख देंगे और यहाँ पर मिलीलीटर को एम एल से ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, एम एल से इस तरह से हम इसे ज़ाहिर करते हैं यहाँ पर। तो 46 लिया हमने यहाँ पर लीटर और यहाँ पर लिया 200 ml। ठीक है, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है हमें 38 लीटर एंड 750 ml। ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पर सिमिलरली पहले की तरह ही हमें यहाँ पर देखना है 200 जो है तो इसमें से 750 माइनस नहीं होता है, तो हमें यहाँ पर 1 लीटर यहाँ पर लेना होगा और उसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 1000 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर विल बी 1200 मिलीलीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आसानी से आप देखेंगे यहाँ पर 46 हमने यहाँ पर लिया, तो 46 में से 1 लीटर हमने ले लिया, तो यहाँ पर 45 लीटर बाकी रहेगा। और ये ml में कन्वर्ट किया तो हम ml के कॉलम में इस तरह से लिख देंगे। अब 750 को यहाँ पर 1200 में से सब्सट्रैक्ट करते हैं हम, तो यहाँ पर हमें मिलेगा कितना, 450। कितना मिलेगा, 450। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जो है तो 45 में से माइनस करते हैं 38 को, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 7। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे जो आंसर होगा हमारा वो इस तरह से होगा 7 लीटर एंड 450 ml। ठीक है, दिस इज आंसर। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। सो स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज टू सॉल्व। बस थोड़ा सा इकाइयों को ध्यान में रखना है, इस तरफ से उस तरफ आपको लेना है। ठीक है, और उसे कन्वर्ट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसे अपने तौर पर हल करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। सो स्टूडेंट्स, देयर इज some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है। और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।